Okay, my screen is visible to you all. Yes. Yes. Okay, so after studying all these different forms of business organization, now there is a question that which form of business organization I should choose if I have to start my business, right? Because everywhere in some of the firm there were certain advantages, and in all the firm there were certain limitations and disadvantages also, right? Yes, sir. Yes, sir. So, what are the things which we need to keep in our mind to choose the appropriate form of business organization? This is what we are going to talk now. See, these are the some of the factors which we have to consider before selecting that which form of business organization you should opt for. Uh, See here, what kind of case study would be asked from this question? That suppose there are three people who are want to business, and they are going to do their business at this much scale. The setting of the organization is this much costly, this much is the risk, right? So it is a manufacturing business or it is a trading business, so all such type of information would be given to you, and you will have to tell in the answer that how will you decide that which form of business organization is good. Making sense? Yes, sir. So how we have to decide it? Then I would say that these are the headings. Like the first one is cost and ease in setting up of the organization. जिस बिजनेस को हम करना चाह रहे हैं उस बिजनेस को सेट करना, उस बिजनेस को स्टार्ट करना कितना आसान है और कितना कॉस्टली है, ये हम देखेंगे, राइट? तो उसके बेसिस पे आप जब भी ये सर्च करने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा कि सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस स्टार्ट करना सबसे आसान है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और सबसे मुश्किल क्या है? Company. सबसे डिफिकल्ट क्या है? कंपनी फॉर्म, करेक्ट? So your answer would lie in between these two, sole proprietor to company. So we will have to see that in that particular situation which one will suit us, है ना? This is one factor. अच्छा, एक यही फैक्टर नहीं डिसाइड कर देगा, we need to see other factors also. Second is liability. कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें लाइबिलिटी लिमिटेड है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, और किस तरह का बिजनेस में लाइबिलिटी लिमिटेड हो तो अच्छा है और लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो तो अच्छा है. हालांकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी विल बी ऑलवेज अ लिमिटेशंस. तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखें, लाइबिलिटी Yes, sir. के पर्सपेक्टिव से, तो कंपनी इज बेस्ट सुटेबल, and then sole proprietorship is less or least suitable, correct? Yes, sir. कंटिन्यूटी. कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कंटिन्यू करेगा? परपेचुअल सक्सेशन किस में है? कंपनी में है. और कौन सा ऐसा है जो सबसे पहले कंटिन्यूटी जिसकी इफेक्ट होगी? सोल Sole प्रोप्राइटरशिप. proprietorship. अच्छा, पार्टनरशिप में थोड़ा ज्यादा है सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में. अच्छा, पार्टनरशिप से भी ज्यादा है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में. यू ऑल एग्री विद मी? Yes, sir. है ना? अच्छा, इस ज्यादा है कोऑपरेटिव सोसाइटी में. तो आप देखो ना, ये पूरा एक सीरीज में है. तो व्हाट आई वुड एडवाइज यू दैट यू राइट ऑल दीज हेडिंग्स इन योर नोटबुक, and in front of these notebook these headings, you do write the form of business organization. Like here I have written most advantageous and least advantageous. तो इन दोनों में भी तो कुछ होंगे, तो ये दोनों का बीच का आपको फिल करना है. गेटिंग इट?
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, suppose there is a business in which Yes, the sir. management ability is the major concern. एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मैनेजरियल एबिलिटी बहुत अच्छा होगा तो ही आप बिजनेस कर सकते हैं। तब फिर आपको क्या करना चाहिए? कंपनी फॉर्म करना चाहिए। अच्छा, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें मैनेजरियल एबिलिटी का उतना इम्पोर्ट, देखो मैनेजरियल एबिलिटी का इंपॉर्टेंस तो हर बिजनेस में, बट उतना नहीं है ना। जैसे अब जनरल स्टोर चलाना है तो उसमें उतना ज्यादा मैनेजरियल स्किल का नहीं है। सामान खरीद करके लाना है, आपको पता होना चाहिए कहाँ आपको सामान सस्ता मिलेगा होलसेल में। और ज्यादातर अब जो सिस्टम है इस समय का प्रिवेलिंग सिचुएशन वो तो ये है कि अगर आपने एक जनरल स्टोर खोल लिया तो आपके पास खुद ही कंपनी वाले लोग आएंगे, आपको आकर के प्रोडक्ट सप्लाई करके जाएंगे, एक सप्ताह बाद पैसे लेने आएंगे। हाँ, दिस इज व्हाट इज द ट्रेंड राइट नाउ। सो मैनेजरियल एबिलिटी इसमें इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं ना। बिजनेस देखना पड़ेगा कौन सा बिजनेस आप कर रहे हो। फिर कैपिटल कंसिडरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सबसे पहले बल्कि यही पॉइंट होना चाहिए, यहाँ हमने हालांकि यही सबसे पहले यही लिखा है। अगर आपका कैपिटल ज्यादा है लगने वाला बिजनेस में, जैसे मान लो हम कंप्यूटर बनाने का बिजनेस करना चाहते हैं, लैपटॉप, हाँ डेस्कटॉप, ये अगर हमारा ये बिजनेस है, या हम कार मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं चल पाएगा ना। चलेगा? No, sir. Are you getting the point now? So availability of Yes, capital, sir. you see, company is having unlimited scope Yes. of raising the capital from the stock market. आप एक पब्लिक कंपनी ओपन कर लो, फॉर्म कर लो, and you will get lot of funds, lot of finance from even from the public. So you will have a better capital or huge capital you can raise from that. Correct? But in that aspect, the least advantageous is sole proprietorship because there is only one person. Okay. Then comes the degree of control. अब कंट्रोल के उस पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कंट्रोल किस में पॉसिबल है? सोल Sole प्रोप्राइटरशिप, proprietorship. है ना। और कौन सा फॉर्म है जिसमें कंट्रोल कम होगा? तो आंसर इज कम ऑन, Partnership. उससे भी कम होगा किस में? कंपनी फॉर्म में। Company. हाँ, वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं कंट्रोल करने के लिए। ऑनर Yes, अलग sir. है, शेयर होल्डर्स अलग हैं, मैनेजमेंट अलग है। देर इज अ डिवोर्स बिटवीन ऑनर्स एंड मैनेजमेंट, ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। हाँ, तो डिग्री ऑफ कंट्रोल वहाँ बहुत ही कम। फिर इसी तरह से नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? Now please understand this. Nature of business, when we say, it means what? Whether the business is manufacturing business or you are into a trade. आप कुछ खरीद बेच रहे हो, या you are into a service. So is it manufacturing? Is it trading? Or it is a service oriented business? So basic these three things you need to keep into your mind. अगर मान लीजिए सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है और बहुत लार्ज स्केल पे नहीं है, आप कुछ सर्विस प्रोवाइडर हो, जैसे आप सैलून खोलना चाहते हो, ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हो, तो ये सर्विस है ना, और लार्ज स्केल पे नहीं है, स्मॉल स्केल पे ही है। तो आपके लिए कौन सा फॉर्म सुटेबल होगा? बोलो। विच Sole फॉर्म वुड बी? proprietorship. सोल प्रोप्राइटरशिप, करेक्ट। मान लीजिए ट्रेडिंग है, ये थोड़ा बड़ा बिजनेस है, मान लीजिए आपने एक बड़ा जनरल स्टोर खोला है,
है ना, या कोई आपके पास में किसी एजेंसी है, जैसे सीमेंट की एजेंसी है ना, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या आप कोई एक शोरूम खोलते हो, है ना, किसी फेमस ब्रांड का, या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का आप शोरूम खोलते हो, जहाँ फ्रिज, टेलीविजन, एसी ये सब बेचेंगे, तो इसके लिए फिर आप पार्टनरशिप में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यस है कि नहीं? यस सर। ये मान लो किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग आपको करना है, भले ही वो फर्नीचर हो, बट यू आर गोइंग टू डू दिस एट लार्ज स्केल, then which कंपनी form of business would be suitable? कंपनी Company. So hope you understood it now. Nature of business का मतलब क्या? Then comes the risk. Yes, sir. Yes, sir. सबसे ज्यादा रिस्की कौन सा बिजनेस, कौन सा फॉर्म? पार्टनरशिप। अच्छा, कौन बोला पार्टनरशिप? सर सुजल। सुजल? ओके सुजल, प्लीज अंडरस्टैंड इट नाउ। मान लो दो लोग मिलकर के एक बिजनेस कर रहे हैं, तो जो भी लॉस होगा वो शेयर होगा दो लोगों में। मान लो यस सर। 10,000 का लॉस हुआ, तो तुम्हें कितना लॉस होगा? 5,000। 5,000 तुम्हारे पार्टनर को होगा, करेक्ट? यस अब सर। मान लीजिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हो और 10,000 का लॉस हो गया, तो ये पूरा का पूरा 10,000 भी करना पड़ेगा। यस सर। Yes, sir. सुजल को, है ना? तो आप देखो, इन दोनों के बेसिस पर, रिस्क के बेसिस पर, सोल प्रोप्राइटरशिप ज्यादा रिस्की हुआ या पार्टनरशिप? सोल प्रोप्राइटर। समझ आ रही बात ना? इसी तरह से कंपनी यस और सर। कम रिस्क होगा, क्योंकि वहां तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, यस सर। करेक्ट? तो ये वो यस फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जब हम सेट करने वाले होंगे उसके बेसिस पर। अच्छा, एक दो पॉइंट और यहाँ हम बात करेंगे। जैसे ये कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, ईज ऑफ फॉर्मेशन, तो हमने यहाँ ये पहला था, ये बात कर ली, ठीक। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप माने क्या? किस कंपनी में, किस, सॉरी, फॉर्म ऑफ बिजनेस में ऑनरशिप को ट्रांसफर करना बहुत आसान है? Company. Which form of company? Public company. Now you understand the difference of private and public company. So when I say here means joint stock company, public company, ये आसान है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में थोड़ा मुश्किल ना। अच्छा, किस में मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल है? पार्टनरशिप में आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप नहीं कर सकते, नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, तो इसलिए सोल प्रोप्राइटर हमने यहाँ नहीं लिखा, पार्टनरशिप लिखा है, ठीक। मैनेजरियल स्किल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रेगुलेशंस, किसमें ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज, रूल्स, रेगुलेशंस सबसे ज्यादा किसमें पालन करना पड़ता है? कौन सा फॉर्म है वो? Company. कंपनी। Company. और सबसे कम किसमें है? Sole proprietorship. सोल प्रोप्राइटरशिप में, करेक्ट। फिर व्हेन इट कम्स टू फ्लेक्सिबिलिटी, किसको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते, जब जैसा चाहें उसमें चेंज ला सकते, तो वो सोल है। प्रोप्राइटर। Sole सोल प्रोप्राइटर। proprietorship. और किसमें बहुत मुश्किल है ये? हर बार आपको बोर्ड ऑफ Company. डायरेक्टर्स की मीटिंग कंपनी। बुलानी पड़ेगी, कोई भी सर कंपनी। डिसीजन लेना होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, राइट? यस सर। Yes, sir. फिर ये दो पॉइंट हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कंटिन्यूटी और लायबिलिटी का। तो दीज आर द फैक्टर्स, on this basis we can decide that which one is most advantageous, which one is least advantageous. अच्छा, in between these two there are other forms of business, so आपको उसको सीरीज में ऐसे लिख देना है।
प्लीज इंक्रीज द कॉलम्स हियर, है ना, रोज सेम रहे बट कॉलम्स बढ़ा लीजिए, और यहाँ पे दूसरे फॉर्म भी आप बीच में लिख दीजिए। मोस्ट एडवांटेजेस, लिस्ट एडवांटेज एकदम आखिरी में, और ये सब कॉलम जो है वो बीच में ऐसे यहाँ पे बढ़ा लीजिए और यहाँ लिख लीजिए। तो एक पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा that what are the factors that influence the choice of form of business organization. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Then this is going to help you a lot. Many a time in the examination you will find the question would be asked that differentiate between sole proprietorship and partnership, right? So 1, 2, 3, 4, 5, 6 points are mentioned here. You may increase the numbers of this. You can meaning, सबका मीनिंग लिख दो, सबका एग्जाम्पल्स लिख दो, है ना, 2 पॉइंट बढ़ गए। अच्छा, फिर कई बार एग्जाम में ऐसे भी आता है क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट बिटवीन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, on the basis of liability. So this one table would help you to answer 1,000 questions. Getting it? Yes, sir. So please understand this table very well. Already we have discussed all these points, so there is nothing to explain about it. But you know, so it is better to take the screenshot of this and make it by yourself. आप अपने आप लिखो, अपने से ये सारे फॉर्म्स लिखो और ये सारे बेसिस लिख करके अपने आप इन सबको एक स्टेटमेंट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। करेक्ट? फिर देखना आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आप आंसर केवल इसी एक टेबल से कर सकते हैं। करेक्ट? Yes, sir. अब आप देखो इससे कितने सारे आप एमसीक्यू क्वेश्चंस बना सकते हैं। This one table is going to help you in framing so many questions. Like if I say, let me frame one question. Separation between ownership and management. This is between double inverted comma. Is highlighting which of the following? Cooperative society, company, joint Hindu family business, partnership. Bolo. Sir, can you repeat the question? Separation between ownership and management highlights which form of business organization? Cooperative society, company, joint Hindu family business, partnership. Company. समझ आ रही बात ना? Second Yes, sir. question can be elected representative or the managing committee takes decision in which form of business organization? Partnership, joint Hindu, cooperative, company. Cooperative society. है ना? तो आप देख रहे हो सभी क्वेश्चन का आंसर इसी से निकल रहा है, राइट? Yes, sir. लाइक इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ancestral property is used? The joint Hindu. Joint Hindu. है ना? कितना देखो बहुत इजी है, ये आपके सामने चूंकि लिखा हुआ है इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। Which form of business organization has the maximum number of members as 200? Private The company. private company. समझ आ रहा है ना सबको आपको? Yes, sir. Yes, sir. है ना?
तो अभी हम आपको 10 मिनट का समय देते हैं and based on this you have to, I think all of you have taken the screenshot of this. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I'm going to share one Google Docs with all of you and you will make questions. So ready? Yes, sir.